Hello everyone, here I welcome you all to the Swift Learn, which is India's most sincere learning destination, providing you classes for 1st to 10th. Or I can say that the one and only destination providing you the concept-based learning. So this is Kanchan here, and I welcome you to the third session of data handling. Yes, so far we have done two sessions in that we have discussed about few things, right? What is data handling, how to record, how to telemark the things, right? How to represent the thing with the help of the pictograph and the bar graph. Today, something new. Okay, let's see that. What is that? Okay, but before that, let me tell you about Swift Learn, that it is providing 100% live and interactive classes, personalized attention batch with maximum 6 students. A dedicated academic mentor team is there, yes, whose work is to track you. Yes, track you on your lackings. Okay, now syllabus CBSE, ICSE, State Board, every syllabus is covered here. I mean, सारे syllabus यहाँ पे cover कराए जाते हैं. Detailed progress report, भाई PTM होती है ना? तो PTM में क्या करते हैं? आपके reports दिखाते हैं. तो आप इन क्लास में आपका जो इन क्लास बिहेवियर है, प्लस आप यहाँ पे मंथली टेस्ट हैं, होमवर्क डेली दिए जाते हैं, आप उन सब में कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, ये सब कुछ यहाँ डिस्कस किया जाता है. नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट प्रैक्टिस टेस्ट, तो अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट है, अनलिमिटेड सब्जेक्टिव टेस्ट है. भाई आपके कंसेप्ट अगर क्लियर हो जाते हैं और आपको प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस चाहिए, सो वी विल बी प्रोवाइडिंग यू दैट. After that, SATs, Swift Learn Academic Test Series. Yes, if you are a Swift learner, agar Swift learner means once you will be a part of Swift learner. Okay, Swift Learn. So आप Swift learner बन जाएंगे, and once you are Swift learner, by this test series, you can compete with the other students in the Swift Learn. Okay, so क्या करना है भाई, एक ट्रायल बुक करके देख सकते हैं. That is absolutely free. For that, you can go to the description box और सिंपली गो टू द गूगल. ठीक है, वहां पे भी आप टाइप कर सकते हैं. Yes, those who are new to the channel, kindly subscribe it. Press the bell icon so that you will never miss any update. Hit the like button, comment, and share to friends, to the classmates. Let's start the part third of data handling. बड़ा ये मुझे बड़ा क्यूट लगता है, ये जो ऐसे 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 करके. Okay, so let's start. So today we are going to learn about pie chart and line graph. ओके, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, बेसिक है, इसलिए स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे. ठीक है, तो चलिए. नाउ टिल नाउ वी हैव कवर्ड अबाउट पिक्टोग्राफ एंड बार ग्राफ, एंड आई टोल्ड यू हाउ टू मेक अ पिक्टोग्राफ, जिसमें की सबसे एक इंपॉर्टेंट होता है कि हमें की डिफाइन करनी होती है. अब 100 है आपके पास, 1250 का आपके पास नंबर्स है, आप उसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे? 1250 पिक्चर्स तो नहीं बनाओगे ना, तो आप उसको एक पिक्टोग्राफ, आप उसके लिए एक सिंबल ले सकते हैं, जो मैंने लास्ट क्लास में आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था. Okay, so these are the four way by which I can represent the data: pictograph, pie chart, bar graph, and line graph. Okay, we have already done these two things, pictograph and bar graph. Now, what is a pie actually? Pie chart, choco pie, सब खाते हैं ना, बड़े यम्मी यम्मी सा chocolate flavor वाला choco pie, right? So a pie chart is similar to this. Whenever we are presenting any data in the form of circular way, दैट्स कॉल्ड टू बी द पाई चार्ट. आपने अगर वर्ड में, अगर आप MS वर्ड में करते हैं, तो आपने कोई भी डेटा लिखा है ना, आप उसको डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं पाई चार्ट में या बार ग्राफ में. वी हैव वो ऑप्शन देयर, लेकिन वो एक्चुअली बनता कैसे? तो पाई चार्ट इज नथिंग. हम क्या कर रहे हैं, हम डेटा को सर्कुलर वे में रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ठीक है, ठीक है, तो इट्स नथिंग लाइक दैट. नाउ यू कैन हाउ टू बी डिस्ट्रीब्यूट इन दिस इन बर्थडे. अब मुझे बर्थडे में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो आई विल कट दैम इन इक्वल पार्ट, कट द केक विल इन इक्वल पार्ट. सो जो पार्ट आपने निकाला है, उसी पार्ट को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दिस. लेट्स सी दैट. ठीक है, अच्छा ठीक है, छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, और लेट मी मेक ऑफ दिस. ठीक है, चलो, इसमें मैंने डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया. ठीक है, मैंने ये सेंटर लिया, मैंने बोला ये मैंने बोला ये पार्ट और ये पार्ट और ये पार्ट. ठीक है, तो ये वो पार्ट्स हैं जो हमने बर्थडे में केक डिस्ट्रीब्यूट किया. ठीक है, तो रोहन वाज अ बॉय, जिसको इतना पार्ट मिला. ठीक है, दिशा वॉज अ गर्ल, जिसको इतना पार्ट मिला. ठीक है, राम वॉज अ बॉय, जिसको इतना पार्ट मिला. एंड मी, मैं भी तो हूँ ना, मुझे भी केक बहुत यम्मी लगता है, तो इट्स मी. ठीक है, तो हमको ये इतना इतना मतलब केक का पीस मिला. और पिज्जा, एनी सर्कुलर थिंग. अगर आप एक एनी सर्कुलर थिंग को हम फ्रैक्शंस पढ़ते आए ना, राइट, तो ये फ्रैक्शन का ही फॉर्म है.
फ्रैक्शन में हम क्या करते हैं, होल को हम पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. तो एक्चुअली वी आर डूइंग दिस, वी आर रिप्रेजेंटिंग आवर डाटा इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल. ओके, सर्कुलर वे में जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो हमें इसका पार्ट चाहिए होगा ना कि ये कितना है, ये कितना पार्ट है. अब अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तो ये 1/4 है, मैंने इसको इक्वली डिवाइड नहीं किया है, लेकिन उसके लिए इक्वल डिवीजन होने चाहिए, 1/4 है. ठीक है, तो यहाँ पे हम इक्वली डिवाइड नहीं करते हैं. लेट्स सी क्या होता है. ठीक है, बट इट इज मोर ओवर द फॉर्म ऑफ दैट वी हैव ऑलरेडी लर्न. तो उसको इससे रिलेट करेंगे तो बहुत जल्दी समझ में आएगा. So pie chart are circular, which is divided into parts or pieces, and each part shows a fraction of the total amount. Yes, आप देख सकते हैं यहाँ पे, आप easily बता सकते हैं कि जो येलो वाला पार्ट है वो सबसे ज्यादा है और जो पर्पल वाला पार्ट है वो सबसे लेस है. पता चल रहा है ना, इंटरप्रिटेशन हो रहा है ना कि ये सबसे मैक्सिमम है और ये सबसे मिनिमम है. तो यही तो हम करते हैं whenever we are presenting something, हम उसमें एनालाइज करते हैं. तो यहाँ से एनालाइज और इजी हो रहा है. भाई येलो पार्ट सबसे मैक्सिमम है तो मैक्सिमम जो भी है, इट डजंट मैटर कि हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बट समझ लिए सर. ओके, नाउ यूजिंग अ कंपास ड्रॉ अ सर्कल ऑफ अ कन्वीनियंट साइज. सबको ड्रॉ सर्कल करना आता है भाई, कंपास इसके लिए बहुत जरूरी है और प्रोटेक्टर इसके लिए बहुत जरूरी है, दैट इज कॉल्ड डी. ठीक है, तो आपने एक साइज बनाया ना, ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम द सेंटर टू द सर्कमफ्रेंस. आप सेंटर से होते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए. ठीक है, आपने 4 लाइंस ड्रॉ करी, ये देखिए आपने यहाँ पे ये सेंटर है, आपने इससे 4 लाइंस ड्रॉ करी. नाउ यूज अ प्रोटेक्टर टू ड्रॉ द एंगल्स. अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है एंगल्स ड्रॉ करना. यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है एंगल्स ड्रॉ करना. एंगल्स ड्रॉ करना मैं आपको ऑलरेडी कल बता चुकी हूँ इन द लास्ट सेशन, आई थिंक. यस, मैंने आपको एंगल्स ड्रॉ करना सेशन में बताया हुआ है बहुत अच्छे से, कैसे हम एंगल्स ड्रॉ कर सकते हैं. राइट, ओके. नाउ The complete angle in a pie chart is 360 डिग्री. भाई ये जो complete angle होता है ना, ये होता है 360 डिग्री. कितना होता है? 360 डिग्री. आप 2D ले लीजिए ना, 1D का 180 डिग्री होता है, तो दूसरे व सेकेंड डी का कितना हो जाएगा आपके पास? 360 डिग्री. तो कंप्लीट जो एंगल बन रहा है वो होता है 360 डिग्री. अब एक्चुअल में हम क्या करने वाले हैं, हम ये 360 को पार्ट करने वाले हैं. एंगल को ही तो पार्ट करेंगे ना. हमारे पास पूरा फुल सर्कल है जिसमें एंगल 360 डिग्री होता है. इट मींस दैट इट हैज और आप एक बहुत कॉमन सा एग्जांपल ले सकते हैं अपनी वॉल क्लॉक का. ठीक है, वॉल क्लॉक का अगर आप एग्जांपल लेंगे और जो आपकी आवर एंड मिनट हैंड है, अगर आप उसका एग्जांपल लेंगे तो यहाँ से सेंटर है. ओके, तो मैंने यहाँ से बनाया. तो सपोज ये देखो, ये पूरा घूम के कितना आता है, वापस 12 पे आ रहा है ना. यहाँ से घूमेगा वापस 12 पे आएगा. ठीक है, तो ये पूरा कितने डिग्री का बना रहा है? 360 डिग्री का बना रहा है. ये 90 हो गया, ये 180 हो गया. ठीक है, ये 180 हो गया. चलो एक इसको बना लेते हैं, लेट मी टेक वन मोर. तो ये देखो, यहाँ से इसने इसका 90 बनाया, फिर 180 बनाया, फिर 270 बनाया और 360 बनाया. ठीक है, ये एंगल्स बन रहे. तो ये पूरा एंगल सर्कुलर वे में चलता है पूरा. ठीक है, जैसे आपकी देखो ये कितने अच्छा वॉच चल रहा है ना, क्लॉक मूव कर रहा है. तो बस इसी मूवमेंट में आप अब डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स होंगे, आपको डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स की हेल्प से इसको रिप्रेजेंट करना है. ठीक है, नाउ let's take the very first example. Draw the pie chart of the following data: cricket, football, basketball, hockey, tennis. 600, 500, 300, 300 again and 100 students are given and the total numbers of students are 1800. अब बोला इसको पाई चार्ट में बनाओ. अब आप इसको आई थिंक पिक्टोग्राफ की हेल्प से और बार ग्राफ की हेल्प से इजीली बना सकते हैं. ठीक है, आप 100 का की ले लीजिए, 1 सिंबल इज इक्वल टू 100 की, और बार ग्राफ में तो आप 100 का ले सकते हैं. बट व्हेन इट कम्स टू पाई चार्ट थोड़ा सा डिफरेंस आता है, थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ती है. लेट्स सी. अभी देखिए, मैंने आपको बोला कि सर्कल्स में डिग्री होते हैं. मैंने आपको क्या बोला? सर्कल्स में होते हैं डिग्री. अब ये तो नंबर्स है, नंबर्स को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करें? नंबर्स को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करें? आप अपने मार्क्स को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं? टेल मी. आप अपने मार्क्स को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं? आप क्या करते हैं? मार्क्स आपके जितने आए हैं अपॉन टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100. तो अगर मैंने मल्टीप्लाई बाय 100 किया तो जो भी मेरे मार्क्स आए वो परसेंटेज में चेंज हो जाते हैं. होते हैं कि नहीं होते हैं? तो आप एक सिंपल नंबर को आप परसेंटेज में चेंज कर सकते हैं. तो सिमिलरली आप किसी नंबर को डिग्री में भी चेंज कर सकते हैं. फर्क सिर्फ इतना आएगा, द डिफरेंस विल बी ओनली दैट आपने यहाँ पे अपना नंबर लिखा, आपने यहाँ पे टोटल नंबर लिखा और उसको मल्टीप्लाई कर दिया 180 से. जस्ट रिमेंबर दिस, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है
तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और डिग्री 360 होगा, सो सॉरी, डिग्रीज में चेंज करना है तो 360 से कर दीजिए, क्योंकि टोटल आपके पास कितना है 360। ठीक है, बहुत सिंपल है, ठीक, याद रहेगा, क्योंकि आप, मैं इसीलिए आपको परसेंटेज भी बता रही हूँ सो दैट आपको याद रहे। जब भी हम परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, मार्क्स अपॉन टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100। सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं कन्वर्ट करना चाहूंगी तो दिस अपॉन टोटल मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री। ठीक है, तो देखिए आगे आपके पास, तो फर्स्ट को मैं चेंज कर सकती हूँ। फर्स्ट था आपके पास 600 अपॉन 1800। चलिए एक काम करते हैं, इसी में कन्वर्ट करते हैं सब। Let me show you that how we can convert this in this single go। ठीक है, तो पहले वाले को डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं। चलिए, तो मैंने फर्स्ट को डिग्री में कन्वर्ट किया, तो दैट वाज 600 अपॉन 1800 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री। ठीक है, आप यहाँ से 0 से 0, 0 से 0 काट लीजिए, 18 2 36 होता है, और 6 20 120 डिग्री। तो ये देखिए नंबर था 600, मैंने उसको डिग्री में कन्वर्ट कर दिया, मैंने उसको कन्वर्ट कर दिया डिग्री में। ओके, नाउ 500 अपॉन टोटल किस में चेंज करना है, डिग्री में, कर दो मल्टीप्लाई 360, क्या दिक्कत है। सिमिलरली थर्ड को 300 अपॉन, नीचे याद रखिएगा हमेशा टोटल आता है, मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री। सिमिलरली दूसरा भी 300 है, करने की जरूरत नहीं है, और फिर 100 है तो आप कर सकते हैं 100 अपॉन 1800 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, 18 2 36, आपके लिए बहुत इजी कैलकुलेशन आएगी। अगेन डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, आपके पास आ गया अगेन, ओ सॉरी, यस अगेन 2, आप इसको निकालेंगे, अगेन 0 से 0 कट गया, 18 2 360 हो गया। तो यहाँ से आ जाएगा 100 डिग्री, 5 2 10, 1 मोर 100, 2 3 6, यहाँ से आ गया आपके पास 60 डिग्री। ठीक है, और यहाँ से आ गया आपके पास 20 डिग्री। तो आप यहाँ पे इसका डिग्री लिख सकते हैं, ये हो गया आपके पास 120 डिग्री, ये आ गया आपके पास 100 डिग्री, ये आ गया आपके पास 60 डिग्री, ये आ गया आपके पास 60 डिग्री, और ये आ गया आपके पास 20 डिग्री। मैंने 300 का 2 टाइम्स नहीं निकाला, एक बार काफी। गॉट दिस और नॉट, समझ में आया। अब ये जो डिग्रीज निकाले हैं ना, याद रखिएगा इन सबका सम 360 आना चाहिए, कर लेते हैं। 120 एंड 120, 60 60 120 हो जाएगा, 120 एंड 1 240, 240 एंड 100 340, एंड 340 एंड 20 360। वाओ, आ गया। तो मैंने बिल्कुल कैलकुलेशन सही करी है, क्या समझ में आ रहा है। कैलकुलेशंस को कैसे चेक करना है, हाउ वी हैव टू चेक द कैलकुलेशंस, आपको पहले फॉर्मूला याद रखिए, नंबर जो भी स्टूडेंट्स है, मार्क्स है, डजंट मैटर, अपॉन टोटल, उसी का टोटल, और डिग्री में कन्वर्ट करना है मल्टीप्लाई बाय 360। आप उसको कन्वर्ट करिए डिग्री में, और जितने भी आपने डिग्रीज निकाले हैं लास्ट में, उन सब का सम, यहाँ पे 1 मोर 60 था, मैंने रिपीट नहीं किया, उसका सम कितना आना चाहिए आपके पास, 360 आना चाहिए। क्लियर, एंगल्स निकाल लिए। चलिए, अब एंगल्स निकाल लिए, तो अब क्या करना है, अब आपको बनाना है इसका पाई चार्ट। ठीक है, अभी मुझे इरेज करना पड़ेगा, ओके, ये देखिए बन गया। अब मुझे इसका बनाना है पाई चार्ट। अब पाई चार्ट बनाने के लिए आप क्या करेंगे मैं बताती हूँ। ठीक है, आपने एक सर्कल बनाया, यहाँ पे बनाते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारे पास डेटा अवेलेबल है। आप सबसे पहले बनाएंगे एक सर्कल, मैं बड़ा सा बना रही हूँ सो दैट इट इज मोर विजिबल, और एक सर्कल बनाने के बाद आप यहाँ पे एक सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब आप देखिए सबसे ज्यादा किसके पास है, सबसे ज्यादा 120 डिग्री है, तो आप यहाँ पे अपना यहाँ पे प्रोटेक्टर डी रखेंगे और 120 डिग्री बनाएंगे ऐसे, 120 डिग्री अराउंड इतना ही आएगा। आप एग्जैक्ट बनाएंगे, मैं जस्ट अराउंड बना रही हूँ। ठीक है, तो ये आपने बना दिया 120, और आपने यहाँ पे क्या लिख दिया, क्रिकेट। अब आप अपना कंपास को यहाँ पे रखेंगे, कहाँ पे रखेंगे गाइस, रिमेंबर आप अपने कंपास को यहाँ पे रखेंगे। आई शुड मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है कि जब स्लांटिंग लाइन होती है तो हम कैसे डी यूज करते हैं। ठीक है, आप उसके लिए प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल। ठीक है, यहाँ पे आप डी रखेंगे और फिर यहाँ से आप बनाएंगे 100 डिग्री, तो यहाँ से 100 डिग्री अराउंड यहाँ बनेगा। ठीक है, अराउंड 100 डिग्री आपका, देखिए ये आपका बनना चाहिए अराउंड 100 डिग्री यहाँ बनेगा। फिर आपके पास 60 डिग्री है, तो आप यहाँ पे अपना कंपास रखेंगे, यहाँ पे 60 डिग्री बनाएंगे, फिर आप यहाँ पे 60 डिग्री बनाएंगे, और बिलीव मी जो आपका लास्ट में बचेगा ना वो 20 डिग्री ही बचेगा। वो आपका क्या बचेगा,
20 डिग्री। ओके, ठीक है, वो आपका 20 डिग्री ही बचेगा। ठीक है, आई वॉज लुकिंग फॉर कि मेरे पास वो पीएनजी अवेलेबल है कि नहीं है, बट इट्स नॉट विद मी राइट नाउ, सो नो इश्यूज। ठीक है, तो ये मैं आपको नहीं तो बना के दिखा देती। ये आपका आ गया 100 डिग्री, ये आपका आ गया 60 डिग्री, ये आपका आ गया 60 डिग्री, और ये आपका आ गया 20 डिग्री। व्हाट यू हैव टू डू एक्चुअली, बस आपको, अच्छा ठीक है, अभी हमारी एक और क्लास है ना इसकी, मैं आपको उसमें कंपास बना के दिखाऊंगी। ठीक है, ओके, चलिए उससे मैं आपको पूरा डी लेकर मैं आपको पूरा एक बारी बना के दिखा दूंगी, तो नेक्स्ट क्लास आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में भी इसको फॉलो करिएगा। वेरी गुड। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं दिस इज अवेलेबल, बन गया। अब यहाँ से आप बहुत सारे क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं। विच इज द मोस्ट पॉपुलर गेम क्रिकेट, विच इज द लीस्ट पॉपुलर गेम, जिसका 20 डिग्री था, सिंपल। जिसका सबसे ज्यादा एरिया वो पॉपुलर, जिसका सबसे कम एरिया वो लीस्ट पॉपुलर, है ना। पाई चार्ट में बहुत इजी। ठीक है, तो आई होप इट इज क्लियर टू यू। नाउ इसका पाई चार्ट आपको खुद बनाना है, बना सकते हैं, आई होप आप बना सकते हैं। बहुत सिंपल है, देखिए टोटल निकाल लीजिए, टोटल 1500, 500 और 400, इसका टोटल निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा 2400। और सबको फिर आप कन्वर्ट कर दीजिए डिग्री में। डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए अगेन आई एम सेइंग 1500 अपॉन, आप इसी के आगे एक टेबल बना लीजिए, 1500 अपॉन कितना आएगा 2400 मल्टीप्लाई बाय 360। इसका आ जाएगा आपके पास 500 अपॉन 2400 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री, और इसका आपके पास आ जाएगा 400 अपॉन 2400 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री। यहाँ से आपके पास एंगल्स निकल जाएंगे, और एंगल्स निकलने के बाद आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नाउ आपको पाई चार्ट दे दिया, इसकी हेल्प से आपको क्या करना है, आंसर्स देने हैं। Now there's what is the total number of student in all these grades? So you have to find out the total number of students in these grades. आप निकाल सकते हैं, उसका वाइस वर्सा कर दीजिए। और सबसे कम किस में है, सबसे कम किस ग्रेड में है, ये देखिए सबसे कम 4th ग्रेड में। आप यहाँ से देख सकते हैं ये ग्रेड 3 के स्टूडेंट्स हैं 60%, ये 20%, ये 35%, ये 40% और ये 45%। ठीक है, तो इसमें से सबसे ज्यादा किस में है, ग्रेड 3 में, और सबसे लीस्ट किस में है, ग्रेड 4 में। ठीक है, ओके, आई होप आप इसको कर सकते हैं, इजी है। ठीक है, तो दोनों तरफ के क्वेश्चंस आते हैं, आइदर पाई चार्ट से क्वेश्चंस आ जाएंगे, आइदर क्वेश्चन से पाई चार्ट बनाना होगा। ओके, आई होप इट इज क्लियर। इफ इट इज नॉट, देन यू कैन ड्रॉप मी अ सिंगल कमेंट इन दैट कमेंट बॉक्स। आई विल डेफिनेटली विल बी गिविंग यू द सॉल्यूशन। देखो अगर मैं सारे सॉल्यूशंस दे दूंगी तो आप क्या करेंगे, राइट तो आप करिए, नहीं आता है जस्ट आस्क मी, आई विल बी गिविंग यू ऑल द सॉल्यूशंस। ओके, ओके एंड ओके, ठीक है, कर सकते हैं ना। चलिए, आई होप इट इज वेरी इजी टू डू इट। और अब आप बोले कि मैम इसके टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैसे निकालने, तो भाई आप देखिए ना 60 है, 60% है, कितने में से, 360 में से। 60 है कितने में से, 360 में से, और ये किस में है, परसेंटेज में। आप इसको नॉर्मल कैलकुलेट कर सकते हैं, तो आप इसको यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। ठीक है, और आप इसको निकाल सकते हैं। क्लियर। नाउ व्हाट आर लाइन ग्राफ्स, वेरी सिंपल। लाइन ग्राफ्स क्या होते हैं, अब जब अगर हम डेटा को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दें लाइन में, तो वो लाइन ग्राफ कहलाता है। ओके, sometimes we can easily represent a given data by the means of a line graph. It consists of a horizontal x-axis, है ना, मैंने आपको कल भी बताया था what is x-axis and what is y-axis। तो देख लीजिए ऐसे बन जाता है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ कोई बार ग्राफ नहीं, आप बार ग्राफ्स में आ रहे थे, अब सिंपल आपको डॉट लगाना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैं आपको अगर एक बात बताऊं, ये देखिए 6 AM में 20 डिग्री था, तो आपने क्या किया, एक तरफ टेम्परेचर रख दिया, आपने टेम्परेचर रख दिया वाई एक्सिस में, आपने यहाँ पर रख दिया टाइम। अब आपने बोला 6 AM में, आप यहाँ से जाइए, आप 6 AM में 20 डिग्री था, तो आपने यहाँ पे 20 डिग्री पे लगा दिया। फिर आपने बोला 9 AM पे 30 डिग्री था, आपने 30 डिग्री बना दिया। लास्ट में सारे पॉइंट्स को करके आप इनको अगर ज्वाइन कर देंगे तो आपका बन जाएगा इजीली, क्या बन जाएगा, आपका लाइन ग्राफ बन जाएगा। ये देखिए, ठीक है, कुछ नहीं करना है ऑलरेडी। अब मैंने आपको इसमें भी स्केल चूज करना पड़ेगा, ऑलवेज रिमेंबर, डायरेक्ट नहीं लिख देना, स्केल चूज करेंगे। तो आप जाएंगे 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, और आप एक काम कर सकते हैं 5, 10 पे भी जा सकते हैं, दैट विल बी मोर इजी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे डेटा है ना, तो आप 5, 10 में जा सकते हैं। यहाँ पे 10, 20 में दिया हुआ, इसलिए थोड़ा आप इसको 5, 10, देन 15, देन 20, देन 25, देन 30,
देन 35 एंड देन 40 भी बना सकते हैं, वो आपके लिए ज्यादा इजी होगा। ठीक है, तो देखिए अपवर्ड लाइंस मतलब वैल्यू इंक्रीज हो रही है। अब इससे हमें क्या पता चलता है, बेसिकली जो लाइन ग्राफ्स होते हैं इससे हमें पता चलता है कि इंक्रीज कहाँ पे हो रहा है और डिक्रीज कहाँ पे हो रहा है। जैसे सपोज मैं परफॉर्मेंस की बात करूँ कि एक पर्टिकुलर क्लास में एक स्टूडेंट है कि उनकी परफॉर्मेंस कैसे हो रही है, इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, अब यहाँ पे टेम्परेचर की बात करो तो 6 AM से 9 AM तक इंक्रीज हो रहा है, फिर थोड़ा इंक्रीज हो रहा है, फिर 3 PM तक थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा है, फिर देखो जैसे जैसे शाम हो रही है वैसे वैसे डिक्रीज हो रहा है, रात तक डिक्रीज हो गया। क्लियर, समझ में आया कि नहीं आया? तो दिस इज हाउ द लाइन, एक्चुअली जो लाइंस जो होते हैं ग्राफ्स वो हमें हेल्प करते हैं। ठीक है, अब आप इसका बना सकते हैं। लाइन ग्राफ बनाना है, मंडे को 2000, ट्यूसडे को 2500, वेडनेसडे को 3000 एंड देन 4000। तो बना सकते हैं, इजीली बना सकते हैं ना। चलिए इसको मैं बना के दिखा देती हूँ आपको। चलिए लेट्स मेक इट। Okay, let's make it. Okay, so कैसे बनाएंगे, देखो ऐसे ऐसे और ऐसे। ठीक है, तो व्हाट यू हैव टू डू, आपको यहाँ पे लिखना है मंडे। तो आप पहले यहाँ पे देखिए 2000, 2500, 3000 और 4000 है, तो आप 1000 का ले लीजिए। आपने लिया है 1000, आपने लिया है 2000, आपने लिया है 3000 और आपने ले लिया है फिर 4000। ओके, अब यहाँ पे 4000 तक आपने ले लिया है। अब आपके पास मंडे, मंडे को, अच्छा ठीक है मैंने यहाँ पे डेटा छुपा दिया है, ये मंडे था, ट्यूसडे है, वेडनेसडे है एंड थर्सडे है। तो मंडे को यहाँ पे ले लीजिए आप मंडे, यहाँ पे ले लीजिए आप ट्यूसडे, यहाँ पे ले लीजिए आप वेडनेसडे और यहाँ पे ले लीजिए थर्सडे। मंडे को 2000 से, तो मंडे को 2000 थे। अभी जिनको बच्चों को प्रॉब्लम होती है ना, पहले पहले आप ऐसे करिए, मंडे से ऊपर जाइए और 2000 से यहाँ आइए, तो यहाँ पे मिल गया। तो आप डायरेक्टली भी बना सकते हैं, मंडे से ऊपर और 2000 अराउंड हम यहाँ पे मिल रहा है। हमें मीटिंग पॉइंट देखना, दोनों कहाँ पे मीट कर रहे हैं। अगर आप बनाने में प्रॉब्लम हो रही है तो देखिए ऐसे बना सकते हैं, ये मंडे से गए और ये 2000 से आए। ठीक है, ऑल्दो हमें ये बनाना नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ कैसे बनाएंगे। चलिए अब ट्यूसडे को कितना था 2500, तो 2500 यहाँ पे आएगा। 2500 के लिए ट्यूसडे, तो मुझे पॉइंट मिल गया, मुझे पॉइंट चाहिए था, मुझे पॉइंट मिल गया और वो अराउंड यहाँ पे आया। वेडनेसडे को थे 3000, वेडनेसडे को थे 3000, तो ये देखिए वेडनेसडे को कितने थे 3000 और थर्सडे को कितने थे 4000, तो ये थर्सडे पे हमारे पास कितना आ गया, थर्सडे पे हमारे पास आ गया 4000। आप ऐसे डॉट 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 करके बना सकते हैं। तो देखिए कैसा लाइन ग्राफ जा रहा है, ये देखिए लाइन ग्राफ कैसे जा रहा है, इंक्रीजिंग, ऊपर ऊपर जा रहा है ना। वैसे भी आप यहाँ से भी बता सकते हैं कि देखो इंक्रीज हो रहा है, तो ये कैसा ग्राफ, कैसा लाइन ग्राफ है आपका, इंक्रीजिंग। जैसे जैसे वीकेंड आ रहा है वैसे वैसे विजिटर्स नंबर में बढ़ते जा रहे हैं। क्लियर, ठीक है, तो दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट द लाइन ग्राफ। और लाइन ग्राफ का सिर्फ कंसेप्ट सिर्फ इतने के लिए यूज होता है कि हमें ये देखना पड़ता है कि इंक्रीजिंग है और डिक्रीजिंग। हमें यहाँ से साफ दिख रहा है कि विद ट्यूसडे तक जाते जाते या वीकेंड तक जाते जाते जो विजिटर्स थे उनका नंबर इंक्रीज हो रहा है। तो बस इसलिए लाइन ग्राफ यूज होता है, इंक्रीज और डिक्रीज बताने के लिए हम लाइन ग्राफ को यूज करते हैं। क्लियर है? आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, राइट? Now, the given graph shows the number of children who visited an old age home in Delhi. Study the graph carefully and answers. ठीक है, ये आपको ग्राफ दिया हुआ है, आपको आंसर्स देना है। तो on which two consecutive days was there a difference of 80 in the number of children who visited the old age home? किसमें डिफरेंस था 80 का डिफरेंस किसमें था? तो आप देख लीजिए ना, आपको पहले सबका निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे सो सॉरी, थैंक यू आ गया, सो सॉरी। ओके, नाउ टेल मी इसका कितना था, अराउंड 400, तो इसको 480 लिख लें, इसको लिख लें अराउंड 280, ठीक है, इसको लिख लें अराउंड 400, इसको लिख लें अराउंड 500 और इसको लिख लें अराउंड 450। तो कौन से में डिफरेंस था? तो थर्सडे और मंडे में कॉन्जिक्यूटिव बोला है, कॉन्जिक्यूटिव, अच्छा ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव में तो आ नहीं रहा है बिकॉज क्योंकि शायद ये कॉन्जिक्यूटिव में तो आएगा भी नहीं, शायद इसमें आ सकता है अगर ये 480 गिवन हो तो, 480 भी नहीं है। ठीक है, अगर कॉन्जिक्यूटिव पूछा है तो आप कॉन्जिक्यूटिव में देख लेंगे कि कहाँ पर है, और कॉन्जिक्यूटिव नहीं पूछा है
तो सिंपली आप देख सकते हैं कि किस में डिफरेंस आ रहा है। तो आप देख सकते हैं 20 का डिफरेंस यहाँ पर आ रहा है। लेट मी चेक द क्वेश्चन वन मोर टाइम। ओके, 2 consecutive days where there is a difference of 80। अच्छा ठीक है, 80 का डिफरेंस पूछा है, तो consecutive days में 80 का तो आ नहीं रहा है, आई डोंट थिंक सो 80 का आ रहा है। अच्छा ठीक है, इसको 500 किया है ना हमने। अच्छा ठीक है, लेट मी चेक ये 500 नहीं होगा, फिर ये अराउंड कितना होगा, ये 500 से थोड़ा ज़्यादा होगा, तो इसको आप 530 ले लीजिए। ठीक है, यहाँ पे आप इसको 530 ले सकते हैं। तो ये 530 हो गया और यहाँ पे डिफरेंस 80 का हो गया। ठीक है, तो वो आपके पास डेटा बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा। यहाँ पे शायद पैराग्राफ्स थोड़े से ऊपर नीचे हो गए, दैट इज वाई थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है। कॉन्जिक्यूटिव बोला है, याद रखिएगा, कॉन्जिक्यूटिव बोला है तो लगातार कॉन्टिन्यूस में वो डेज होने चाहिए। अब ऐसे तो 400 और 480 में भी 80 का डिफरेंस आ रहा है, लेकिन ये कॉन्जिक्यूटिव नहीं है। ठीक है, तो आई कांट टेक दिस एज अ आंसर। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब कॉन्टिन्यूस होना बहुत जरूरी है। आई होप इट वॉज क्लियर। ठीक है, एज आई टोल्ड यू दैट इन द नेक्स्ट क्लास आई विल बी टेलिंग यू ऑल्सो दैट हाउ वी कैन यूज दैट पर्टिकुलर डी इन फॉर्मिंग द पाई चार्ट। अदरवाइज आई होप सारे बच्चों को आता है, क्योंकि पाई चार्ट का क्वेश्चन ही तभी आपके सिलेबस में है जब आपको ऑलरेडी एंगल्स बनाने आते हैं, राइट? फिर भी कोई इशू है तो यू कैन ड्रॉप मी अ कमेंट इन द चैट बॉक्स, नो इश्यूज। ओके, सो वी हैव डन पाई चार्ट इन लाइन ग्राफ, दैट्स इट, बहुत इजी था, राइट? ओके, सो आगे भी थैंक यू बोलने के लिए, आइए, थैंक यू। Okay, so here is time to wind up the class. Subscribe to our channel, press the bell icon and like it. ठीक है, कमेंट भी कर सकते हैं और शेयर तो कर ही सकते हैं भी, अगर अच्छा लगा दूसरों को भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, so let's go. So till to the next session, which will be very soon, right? So tata, bye bye, take care and keep practicing, keep planning, but do some fun activities also. So bye bye.